Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. So, students, in last maths class, we have completed the exercise 5.6, and today we are going to solve the questions from the exercise 5.7. So, this exercise 5.7 is based on the word problems. So, आज बच्चों हम exercise 5.7 करने वाले हैं, जिसमें हमने solve करने हैं word problems. Okay, so today I'm going to solve question number 1, question number 3 and question number 4 from the exercise 5.7, and remaining questions, which are question number 5 onwards, those questions I'm going to solve in the next class. Okay, and question number 2, here you have to solve this question number 2 in your homework. तो आज क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 मैं क्लास वर्क में सॉल्व करके दे रही हूँ, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 को होमवर्क में सॉल्व करना है अपने मन से. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. So the first question number 1, if 40 chocolates are shared equally by 5 children, how many chocolates will each child get? So in this question they have given us that we have to distribute 40 chocolates equally among the 5 children. तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि हमारे पास 40 चॉकलेट्स है और उन 40 चॉकलेट्स को हमने 5 बच्चों में, मतलब 5 चिल्ड्रन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली शेयर करना है. इट मीन्स इट मीन्स ईच एंड एवरी चाइल्ड विल गेट द इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स. ये जो 40 चॉकलेट्स है इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे कि हर एक बच्चे के पास, वो जो 5 बच्चे हैं, हर एक बच्चे के पास सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स होंगे. मतलब फर्स्ट चाइल्ड विल ऑल्सो हैव same number of chocolates, second, third, fourth and fifth. So this means we have to distribute these 40 chocolates in 5 groups, है ना. 40 chocolates को हमने 5 different groups में distribute करना है, और ऐसे distribute करना है कि in each group there will be सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स, है ना. 5 चिल्ड्रन मतलब 5 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. 40 को कितने ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो जब भी हम दी गई क्वांटिटी को किसी भी ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब हमने क्या करना होता है? तब हमने डिवीजन करना होता है. यस और नो, है ना. डिवीजन करते हैं ना तब जब हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमंग the groups, that time we do the division. So here also we have to perform the division. So this is the word problem. That's why what we will do, we will write down the data given in the words first. ठीक है. So the first thing which we have to write in the words is how many chocolates we have to distribute over here. We have to distribute 40 chocolates. That's why total number of chocolates is equal to 40. कितने chocolates को distribute करना है हमने? equally share करना है 40 chocolates को. That is why total number of chocolates is equal to 40. Now these 40 chocolates we have to distribute, we have to divide among how many children? These chocolates we have to divide or distribute among 5 children. That's why number of children is equal to 5. And third, the thing which we have to find over here, यहाँ पे क्या find out करना है हमने? यहाँ पे हमने find out करना है number of chocolates each child will get. मतलब हर एक बच्चे के पास कितने चॉकलेट्स जाएंगे वो हमें फाइंड आउट करना है, या एक बच्चे के पास कितने चॉकलेट्स होंगे. नंबर ऑफ चॉकलेट्स वन चाइल्ड विल गेट और ईच चाइल्ड विल गेट. द मीनिंग ऑफ बोथ द सेंटेंसेस इज सेम. So number of chocolates each child will get is equal to question mark. Now start solving the question. Okay, अब हमें पता चल गया यहाँ पे डिवीजन करना है. So write down number of chocolates each child will get is equal to total number of chocolates divided by number of children. हमें कौन सी क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली ग्रुप्स में? हमें 40 चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 चिल्ड्रन में. दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स विल बी डिविडेंड, एंड डिवाइजर क्या होगा? कितने ग्रुप्स चाहिए हमें यहाँ पे? 5 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, इसीलिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन
मतलब डिवाइजर विल बी 5, दैट इज वाई 40 डिवाइडेड बाय 5. सो नंबर ऑफ चॉकलेट्स ईच चाइल्ड विल गेट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 5. सो 40 डिवाइडेड बाय 5 यू कैन डू इट ओरली, है ना. लॉन्ग डिवीजन मेथड की ज़रूरत है क्या यहाँ पे? नहीं, 5 की टेबल सबको आती है. सो 5 8 जा 40. सो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? 8. सो फाइनल आंसर जो वर्ड्स में लिखना है वो ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ चॉकलेट्स ईच चाइल्ड विल गेट इज इक्वल टू 8. मतलब हर एक बच्चे के पास कितने चॉकलेट्स चले जाएंगे? 8 चॉकलेट्स चले जाएंगे. तो ये 40 को हमने 5 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वली. तो हर एक ग्रुप में मतलब 5 जो चिल्ड्रन है, 5 जो बच्चे हैं, उसमें से हर एक बच्चे के पास कितने चॉकलेट्स जाएंगे? 8 8 8 8 8. ऐसे 5 टाइम्स 8 जाएगा, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 4914. If one of them is 9, find the other number. Okay, so in this question what they have given us? They have given us the product of 2 numbers. जैसे कोई भी 2 नंबर्स, प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, है ना. ये हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा है. व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्ट? इट इज़ द आंसर दैट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द 2 नंबर्स. सो 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट हमें पता है विच इज़ इक्वल टू 4914. 2 नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई किया है तो उसमें जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो क्या है? 4914. नाउ फ्रॉम दोज 2 नंबर्स 1 नंबर इज़ 9. 2 नंबर्स हैं जिसमें से एक नंबर हमें पता चल गया है. जो मल्टीप्लिकेशन में 2 नंबर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं उसमें से एक नंबर है 9. अब हमें फाइंड आउट करना है कि दूसरा नंबर क्या है. तो मल्टीप्लिकेशन में जो 2 नंबर होते हैं उसमें से एक नंबर है 9, तो दूसरा नंबर हमने फाइंड आउट करना है. सो पहले यहाँ पे डेटा गिवन लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. सो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स? इट इज़ इक्वल टू 4914. नाउ वी नो दी 1 नंबर फ्रॉम दोज 2 नंबर्स. सो 1 नंबर इज़ 9. उसमें से एक नंबर क्या है? 9. व्हाट वी हैव टू फाइंड ओवर हियर? क्या फाइंड आउट करना है? The other number. That is why the other number is equal to question mark. Now यहाँ पे हमें प्रोडक्ट दिया है और जिन 2 नंबर्स का वो प्रोडक्ट है उसमें से एक नंबर पता है. इसका मतलब है हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट पता है. वी नो द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट? दैट इज 9 मल्टीप्लाइड बाय अदर नंबर. अदर नंबर पता है क्या हमें? नहीं, पर 2 नंबर क्या है वो हमें उनका प्रोडक्ट पता है, 9 एंड द अदर नंबर. वी डोंट नो द अदर नंबर, दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नंबर आई हैव रिटन द अदर नंबर. 9 मल्टीप्लाइड बाय अदर नंबर. 9 और जो दूसरा नंबर है उन दोनों का प्रोडक्ट. व्हाट इज़ द प्रोडक्ट? इन दोनों का प्रोडक्ट है 9 और अदर नंबर का प्रोडक्ट है 4914, है ना. वी नो द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इज इक्वल टू 4914. जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो पता है हमें. नाउ वी नो हाउ टू गेट द डिवीजन फैक्ट्स फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, है ना बच्चों. हमने डिवीजन फैक्ट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं? अगर हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स दिए हैं तो डिवीजन फैक्ट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है ना. तो उसी तरीके से हम अब ये अदर नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिवीजन फैक्ट्स. हियर दे हैव गिवन अस द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. फ्रॉम दिस multiplication fact we can get the division facts, and from that division fact we can find the other number. देखो, from given multiplication fact we can get the division facts. division facts क्या होते हैं? जो भी प्रोडक्ट होता है उसको इस मल्टीप्लिकेशन के पेयर में जो 2 नंबर्स है उसमें से किसी भी एक नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कोशेंट या आंसर में दूसरा नंबर आता है. मतलब यहाँ पे अगर हम 4914 को इन 2 नंबर में से 9 एंड अदर नंबर, इन 2 नंबर में से सपोज हमने 9 से डिवाइड किया, 4914 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मतलब कोशेंट में क्या आएगा? ये दूसरा नंबर आएगा, मतलब अदर नंबर आएगा. सो टू फाइंड अदर नंबर व्हाट वी विल डू? वी विल डिवाइड दिस प्रोडक्ट 4914 बाय 9. ठीक है, 4914 को इस पेयर में मतलब मल्टीप्लिकेशन के पेयर मतलब 2 नंबर, 2
चीज़ें एक साथ होती है तो उसको पेयर बोलते हैं। तो दो नंबर जो साथ में है उसमें से एक नंबर से अगर हम डिवाइड करते तो आंसर में दूसरा नंबर आता है। अदर नंबर से अगर हम 4914 को डिवाइड करेंगे तो आंसर में 9 आएगा। तो हमें 9 नहीं चाहिए आंसर में हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना है, इसीलिए हम 9 से डिवाइड करेंगे। जो प्रोडक्ट है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 9 से। सो 4914 को डिवाइड करेंगे 9 से। From given multiplication fact we can get division facts. So division fact will be 4914 divided by 9. The answer will be equal to how much? It is equal to the other number, है ना? So therefore other number हम बस स्वैपिंग कर रहे हैं, लेफ्ट साइड को राइट साइड में लिखेंगे और राइट साइड को लेफ्ट साइड में लिखेंगे। Other number is equal to 4914 divided by 9. Use the long division method to find the answer. 4914 divided by 9. 9 5s are 45. 4 is the difference. Next digit is 1, so 4 1 41. 9 4s are 36. So here 41 minus 36, the answer is, difference is 5. And next यहाँ पे आएगा next digit 4, that is why 5 and 4 54. 9 6 54 minus 54 करेंगे, 0 0 remainder. So what will be the other number? The other number is 546. जो डिवीजन का क्वोशंट आएगा, मतलब 4914 डिवाइडेड बाय 9, द क्वोशंट विल बी द अदर नंबर। तो अदर नंबर क्या आएगा? 546. दैट इज वाई आंसर में लिखो द अदर नंबर इज 546. ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 4. A car travels 9 kilometers in 1 liter of petrol. How much petrol will it require to travel 873 kilometers? So here car travels 9 kilometer in 1 liter of petrol. अगर किसी कार में 1 लीटर ऑफ पेट्रोल है तो वो 9 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उस 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में। एंड उस कार को अभी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? उस कार को अभी ट्रैवल करना है 873 किलोमीटर्स का डिस्टेंस। तो हमें फाइंड आउट करना है इतना डिस्टेंस, 873 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उस कार को कितने पेट्रोल की ज़रूरत है, कितने लीटर्स ऑफ पेट्रोल दैट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल दैट कार विल नीड टू ट्रैवल 873 kilometers of distance. We know that in 1 liter car can travel 9 kilometers. Now we need to find out how many liters of petrol will be needed to that car to travel 873 kilometers. Okay, so first of all write down the data given. यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल में कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो एक डेटा है, तो उसको लिखो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 9 किलोमीटर। 1 लीटर में गाड़ी कितना डिस्टेंस जा रही है, कितना दूर जा रही है या कितना अंतर वो गाड़ी कवर कर रही है, 9 किलोमीटर्स। नेक्स्ट सेकेंड डेटा, how many kilometers that car has to travel? That car has to travel distance which is 873 kilometer. That is why distance traveled is equal to 873 kilometers. उस कार को कितने दूर जाना है, कितना डिस्टेंस कवर करना है, उस कार को डिस्टेंस कवर करना है 873 किलोमीटर्स। नाउ क्या फाइंड आउट करना है हमने इस क्वेश्चन में? वी हैव टू फाइंड पेट्रोल रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 873 किलोमीटर्स विच इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता करना है कि 873 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उस कार को कितने लीटर पेट्रोल की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ टू फाइंड पेट्रोल रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 873 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस वी नीड टू डू डिवीजन ओवर हियर। क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे? डिवीजन। और किसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? वी हैव टू डिवाइड
डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है इस कार को? 873। तो 873 को डिवाइड करो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है? 9 ना। तो 873 डिवाइडेड बाय 9 करना है। देन वी कैन गेट द पेट्रोल रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 873 किलोमीटर। तो ऐसे करने से हमें क्या मिलेगा? 873 डिवाइडेड बाय 9 करने से हमें मिलेगा द पेट्रोल रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 873 किलोमीटर्स। ओके, सो वी विल यूज लॉन्ग डिविजन मेथड टू फाइंड आउट द आंसर। सो 873 को डिवाइड करो 9 से। 9 9 ज़ा 81, 87 minus 81, it is 6. Okay, and next is 3. 6 के बाद लिखेंगे 3. 63 will be the next dividend. So 63 divided by 9. 9 7 is 63. So 63 minus 63 will be 0 0. So how many liters of petrol that car will need to cover the 873 kilometers of distance? It will need 97 liters of petrol. कितने liters का petrol लगेगा उसको? 97. So उसको words में लिखो. Petrol required to travel 873 kilometer is 97 liters. So liters का मैंने यहाँ पे यूनिट यूज़ किया है। लीटर का जो यूनिट है, सॉरी लीटर का मैंने यहाँ पे सिंबल यूज़ किया है, दैट इज़ एल। एल मीन्स लीटर्स, या पूरा लीटर वर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। सो उस कार को 873 किलोमीटर का, जैसे मैंने किलोमीटर पूरा वर्ड नहीं लिखा है, किलोमीटर का जो यूनिट है किलोमीटर, उसका मैंने सिंबल यूज़ किया है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है केएम। केएम मीन्स किलोमीटर। तो 873 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए उस कार को चाहिए 97 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड today's class, and if you have not understood anything from today's class, you can ask your doubts to me anytime, and remaining questions, which are question number 5 onwards, we will be solving those questions in the next class. Till then, see you, have a great day.